Hello and welcome back to another podcast with Fark Padta Hai. Today we're diving into the role of media in countering violent extremism and promoting peace. So, in a country where misinformation and sensational news often makes the headlines, there are examples of individuals who are working hard to counter the narrative and to promote peace building. To discuss these challenges that these journalists face while tackling these important yet sensitive issues, there are multiple things that they need to take care of to make sure that they are delivering the honest truth while maintaining a sense of responsibility. So to answer these very hard questions, we have two very special guests with us today. So firstly, we have Sir Talha Ahad here, who is the CEO and founder of the TCM, which is a leading digital platform in Pakistan right now. They're famous for their hard-hitting narratives, investigative journalism. So thank you so much for joining us today. Thank you for the invitation. So our second guest is Sir Nouman Manzoor, who is a communications expert. He has been working on countering misinformation and designing media strategies to prevent radicalization. He has been using communications as a tool to build resilience in Pakistani communities, and he has worked with a lot of the international organizations, the civil society, law enforcement, and much more. So thank you so much for joining us today. Thank you for having me. सबसे पहले तो I would like to touch upon the more generic aspect of this podcast के जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया कि इस कंट्री में और जनरली भी मीडिया पे, चाहे वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो न्यूज़ होती है जो थोड़ी सेंसेशनल होती है, थोड़ी it's something that's more maybe not even the truth, but it's something that's more glamorized, is often the one that makes to the algorithm. So TCM has had a lot of success in gaining attention of the audience in these important issues. How have you been doing that at TCM? ये बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल सवाल है. So just to give audience a bit of a context, like when we started, like we were very clear what we wanted to do. So it was not कि बस हमने एक वायरल कंटेंट बनाना है जो लोग देखें और बस यूट्यूब से पैसे आए, और ये जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग, मतलब जो चीज़ चल रही होती है मार्केट में, पीपल लाइक अच्छा यार बस वही शुरू कर दो सारे और यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए और वो सारा. आई थिंक लाइक आई वाज लाइक very very clear that there are three sort of pillars of starting TCM. One was that there is so much fake news, biased information, so much polarization in the society as well as in the media as well. तो उसको हम किस तरीके के साथ एक बड़ा सेंट्रिस्ट सा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए जो स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी उनके सामने लाई जाए और वो फिर खुद डिसाइड करें उन्होंने राइट साइड पे जाना है, उन्होंने लेफ्ट पे जाना है, वो अपने ओपिनियंस खुद बनाए. और दूसरा उसका बड़ा जो पिलर था वो ये था कि उस इंफॉर्मेशन को आप नॉर्मली होता है कि लोग आर्टिकल्स या ब्लॉग्स फॉर्म में वो करते हैं, सो पढ़ने वाला सीन बिल्कुल लोगों का ख़त्म हो गया, स्पेशली यंग बच्चों का. तो वी वर लाइक अच्छा वी वांट टू डू दैट इन अ वीडियो फॉर्मेट. एंड द थर्ड वाज कि जो थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, अपना ओवरऑल पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, या कोई भी एक इशू भी लें तो उसके अंदर भी 2-3 नैरेटिव्स आपको नजर आते हैं, तो लोगों के सामने वो एक अनहर्ड या अनटोल्ड स्टोरीज भी लाई जाएं. सो दीज वर द 3 बिग पिलर्स ऑफ स्टार्टिंग TCM. Okay. While we're talking, staying on the topic of digital platforms and leveraging them for peace building, जहाँ पे हम बात करें कि हम किस तरह अपना content push कर सकते हैं to our younger audiences, at the same time, there are a lot of extremist narratives जो social media पे हैं, and sometimes they might be getting a bit more attention than the actual truth. How do you think it's possible for us to combat that and sort of like bring out another alternate perspective? I think it's a very important question, and सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि before you talk how communications work and how a campaign go viral and how people start liking a post and something, it's very important to see that how human brain and psychology works. Naturally एक negative चीज़ और ऐसी चीज़ जो कि आपने नहीं देखी हुई, जो आपको शॉक पहुंचा रही है, जो आपको एक innovation दे रही है, जो आपको एक नया साइड दे रही है, उसके there are very high chances कि लोग उसको देखेंगे, उसको attract करेंगे. As a communication specialist और as a communication professional हमारी जॉब बड़ी challenging होती है कि हमने पूरा narrative build बनाना होता है और हमने focus लेकर आना होता है
लोगों का टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और टू दैट पर्टिकुलर इशू। अब एक्सट्रीमिज़म और ये ऐसी चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हॉलीवुड के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, और बहुत ज़्यादा इसको सेंसेशनलाइज और इसको बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले के तौर पे उसको भर दिया जाता है, ग्लैमराइज किया होता है। लेकिन उस नैरेटिव को काउंटर करना और पीस की स्टोरीज बताना और सोशल हार्मनी की स्टोरीज बनाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग में हमारा रोल हम ऐसे ही प्ले कर सकते हैं। वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट स्मॉल. दिस पॉडकास्ट इज प्रॉब्ली अ स्टार्ट, एंड व्हेन while I was starting this podcast and I was doing a workshop with the comms professional, I realized that there are other people, हमारी पॉडकास्ट बनने के बाद लोगों का एक ध्यान आ गया है कि अच्छा वो कर रहे हैं तो अच्छा हम भी इसके ऊपर बात करके देखते हैं. So slowly and gradually it's like a drop in the ocean when you start with creating the positive narratives, started talking about positive things that happen in the society, started talking about religious harmony. जब हम दिखा सकते हैं, पाकिस्तान is full of so many examples कि जहाँ पे कोई क्रिश्चियन है जो कि मुस्लिम सोसाइटीज़ के साथ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं. अब सिंध ऐसी जगहों से भरा पड़ा हुआ है जहाँ पे होली, ईद सब इकट्ठी मनाई जाती है, लेकिन वी नीड टू टेल दोज स्टोरीज. चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट द स्पेस. अगर हम इसी को थोड़ा स्पेसिफिक करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने देखी है मीडिया कवरेज, स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या चाहे वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एज अ कम्युनिकेशंस ऑफिसर व्हाट आर द स्ट्रेटजीज कि हम मेक श्योर कर सकें कि हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, पर हम मेक श्योर कर रहे हो कि हम थ्रू दैट रिपोर्टिंग वी आर नॉट वर्सनिंग द डिवाइड विद इन दीज सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. आई थिंक एज तलहा मेंशन्ड दैट मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट बना लेना है कि जी ये चीज़ हुई है तो उसकी ये वजह हुई होगी और ये तो ऐसा होते ही आया है और ये हमारे कंट्री में होते ही रहेगा और इसका कोई हल नहीं है. एज अ कॉम्स पर्सन और एज एनी वन हु इज टॉकिंग टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन, उनको फैक्ट्स को स्टेट करना बहुत ज़रूरी है. फैक्ट्स को स्टेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, या आपका क्या रोल है. जैसे कि न्यू मीडिया का हमने जिक्र करते हैं, तो न्यू मीडिया में जैसे अनबायस्ड ओपिनियंस आते हैं, तो लोगों को अगर पर्सपेक्टिव मिल जाए, फैक्ट चेक कर लें, चीज़ों की डिसइन्फॉर्मेशन को डबल ट्रिपल तरीके से चेक कर लें, एज अ कॉम्स पर्सन यू पुट अ वेरी क्लियर फैक्ट्स बिहाइंड इट. तो फैक्ट्स की बेसिस पे आई थिंक लेट द ऑडियंस डिसाइड कि how they want to perceive that news and how they want to absorb in their mind. So we have this perspective in the form of like communications and how you're handling that. At the same time, अगर हम बात करें कि जो digital platforms हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादातर posting है, वो largely unregulated हैं, क्योंकि as such laws नहीं है, but there is a lot of censorship कि you just take the content out instead of initially going in with the regulation. So how do you ensure that your journalism is completely responsible and that the narratives that you're pushing are accurate, or just your journalism is like fully researched? How are you ensuring that? I mean, उसमें हम लोगों ने तो ये किया है, अगर if I talk about TCM's work, कि we have a full एक editorial team. So जो भी चीज़ आती है वो एक पूरा go through होके जाती है 3-4 लोगों से. और अब ज़ाहिर 8 साल हम लोग को हो गए हैं, एक वो ethos बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की. वो इवन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आते भी हैं विद लेट्स से आप एक्सट्रीम किस्म के पीटीआई फैन है या पीएमएलएन फैन है या टीएलपी के फैन है, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइड पे वो रखना होता है. आप ठीक है वो बायसनेस कंटेंट में आती है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ लाइक चेक्स एंड बैलेंसेस व्हिच वी एटलीस्ट ट्राई कि वो ज़रूर हों, कि वो जो एक एडिटोरियल डिसीजन है हमारा उसमें वो चीज़ इफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा. And I would really want your comment on the fact that और भी लोग हैं जिस तरह this is your initiative. There are other news. We have news channels as well. A lot of the news channels are on social media as well now. How do you think कि किस तरह हम ensure कर सकते हैं कि the reporting that we're doing is responsible, especially in the context of CVE? कि हम for example अगर एक narrative बन गया कि एक हुलिया होगा एक टेररिस्ट का या फिर एक बंदे का जो रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहा है, हाउ कैन वी मेक श्योर कि हम व्हाइल वी आर रिपोर्टिंग वी आर नॉट फर्दर मार्जिनलाइजिंग दीज कम्युनिटीज? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जैसे आपने कहा कि जो सेल्फ एजुकेशन है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग तो यू नीड टू बी very very responsible like in your own self first of all, more than कि अच्छा मेरा मालिक क्या कहेगा या मुझे टीवी के लिए करना है. अभी आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज ऑफ द रेस, यार मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज़ कर दूं, मैं पहले ये स्टोरी ब्रेक कर दूं, मैं यूट्यूब पे पहले व्लॉग अपना कर दूं, तो उसमें फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. अब स्पेशली ऑन डिजिटल आई थिंक इट्स गेटिंग मोर एंड मोर वर्स्ट, बिकॉज टीवी पे
किसी हद तक चलो एक डायरेक्टर न्यूज़ होता है, फिर एक एडिटर होता है, वो कुछ चला जाता है, रिमूव हो जाता है। अब तो आप ही हैं, बस आपने कैमरा सामने रखा, व्लॉग बना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा एक और चीज़ जो आई थिंक डिसइन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारी कम्युनिटी से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से लोग ज़्यादा करते हैं, वो थंबनेल्स हैं। अब आप बड़े-बड़े चैनल्स के बड़े-बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप बड़ा क्रेडिबल समझते हैं, उनके आप चैनल्स जाके देखें, तो यू आर लाइक यार, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं एक टीवी चैनल पे एक शो में गया, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यार इसको ये पैकेज कैसे करते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का टीवी पे आने का, mainstream. स्ट्रीम पे, और वो जब यूट्यूब पे आया, उसके अंदर जो बात थी वो एक भी चीज़ थंबनेल पे नहीं है। थंबनेल के ऊपर पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था, इसको क्लिक करें तो इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको मिल जाए। तो आई थिंक वो तो विद इन आपको एक यू नीड टू वर्क इन योर ओन सेल्फ कह लो, या मोर ऑफ के यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि यार ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं, और डिजिटल का तो नुकसान सबसे बड़ा ये भी है कि वहाँ तो इट्स एवरग्रीन कंटेंट। टीवी पे तो ये ना, चलो कोई फेक न्यूज़ हुई भी तो बस 5 मिनट आई, चलिए ख़त्म हो गई, या रिपीट में आपने बंद कर दी। तो यहाँ तो बस अब आप अगले दिन में चले गए हैं। मतलब पिछली 6 वीडियोस, अब इतना किसके पास टाइम होगा कि वो वापस जाएगा, थंबनेल चेंज करेगा। और आगे जो जनरेशन्स आ रही हैं अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, तो यही कंटेंट कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के सामने दोबारा आ रहा है। अगर हम इसी को कैंपेन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ मीडिया कैंपेन्स इन काउंटरिंग वायलेंस एक्सट्रीमिज्म या पीस बिल्डिंग. व्हाट आर योर मेन challenges, जो top few challenges that you think that these are the ones that we're experiencing in every single campaign that we're doing? I think this is a commercial world, and I think let's accept it that जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है उसी की भी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कमर्शियल या सेंसेशनल या जो कंटेंट होता है उसको कन्वर्ट करना टू कॉज बेस्ड, टू एन इशू बेस्ड कंटेंट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज ओनली ट्रेडिशनल मीडिया एंड नाउ देयर डिजिटल मीडिया, इज टू एंगेज कंटेंट क्रिएटर्स। और जैसे तलहा ने कहा कि वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स, जो कि ठीक है कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक थीम पे काम कर रही हैं और जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस को क्रिएट कम करना है। आई वुड लाइक टू स्टेट the example of Tanman Neelo Neel. I think it's an excellent example that it was not drama which I put the content to, or when I saw the drama, it actually put me into it. They presented it so well. So what they did is that they explored this concept of mob reality. I'm sure that the writer or the director or the story writer has something in his life or her life जो कि उसने इसको बड़ा क्लोजली फील किया है, या उसके बारे में सेंसिटाइज्ड है, या उसके बारे में एजुकेटेड है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग वी कैन डू एज कॉम्स पीपल इज़ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद द पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, इधर वो डिजिटल में हैं, चाहे वो टीवी के ड्रामास लिखते हैं, चाहे वो रेडियो के अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। योर जॉब एज अ कॉम्स पर्सन इज़ टू क्लैरिफाई द पिक्चर कि जी ये असल सिचुएशन है, ये हम करना चाह रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ है जिसका सोसाइटी में आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को और आपकी आने वाली जनरेशंस को फ़ायदा है। Once a writer and a content creator is convinced, and whenever he or she has a साइलेंट थॉट्स इन हिज माइंड, और उसका जब क्रिएटिव वो प्रोसेस शुरू होगा तो वो सोचेगा कि नहीं, इट्स राइट, ये एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इज एवरीवन्स प्रॉब्लम एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो जैसे आई वांट टू रीट्रेट कि जैसे एक राइटर ने तनमन नीलो नील को एक बहुत ही लो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास की लव स्टोरी से टर्न किया इनटू समथिंग व्हिच इज़ totally out of the blue, and then the way they ended the episode by showing all the mob incidents in Pakistan, that was amazing. So somehow link करके कंटेंट क्रिएटर्स को और अपने कास्ट को, स्पेस को कम करके, इंफॉर्मेशन को शेयर करके हम जो है वो इस अपनी कैंपेन्स को बेहतर कर सकते हैं। Exactly. The example you shared is a very good example of storytelling and a sort of spreading the message in a way that it's not in your face. Okay, oh, we're peace building, ye hai, ya we're countering violent extremism, but it's a way to get this message into people's minds in a very natural way. Your videos, what we've all seen, the ones that go the most viral are the ones jinme true logon ki stories hain. Storytelling is a huge part of your campaigns. So how would you say that has impacted your work, and especially in pushing these narratives that we're trying to do? Storytelling ka isme kya part hai?
I think like हम लोग जब कुछ भी कंटेंट पीस बनाना चाह रहे होते हैं, अब आई थिंक वी आर वेरी क्लियर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि मिर्च मसाला ही आजकल बिकता है। अब जब अगर आपने सीरियस काम करना है तो उसको देन यू नीड टू कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कोई फॉर्मेट, इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी टेलिंग उसके अंदर हो, वरना आप सिंपली लोगों को जाके ज्ञान बांटेंगे वो कोई नहीं सुनेगा। आप वही वाली बात मोनोलॉग में करें, लाइक यू नो, सो लाइक आवर वे ऑफ doing things are a bit different rather than a journalist or a producer come on a camera and जैसे vlogs होते हैं कि जी ये करें वो करें, ये हुआ वो हुआ। उसकी बजाय what we try to do is we try to go to the source directly, जो main person है, whether it's an effective whether an expert, और फिर उसको कितना ह्यूमनाइज किया जा सकता है पूरी चीज को। बिकॉज आप ह्यूमनाइज करोगे तो अगला बंदा जो उसको देख रहा है वो दे विल स्टार्ट लाइक सॉर्ट ऑफ रिलेटिंग। तो यू नीड टू कम अप विद जो बोरिंग टॉपिक्स हैं उनको इंटरेस्टिंग आपने कैसे बनाना है, दैट्स लाइक अ वेरी चैलेंज। And I think it's really important because a lot of the times अब सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज्यादा न्यूज आ रही है ना कि हर तरह से कि ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया वहां पे, कि आप एक तरह डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो when you see a person on your phone who's actually telling their story, you can relate to their experiences and like अगर आप relate नहीं भी कर रहे, you can like you said ह्यूमनाइज हो जाते हैं सब। तो आपको रियलाइज होता है कि जो हम नंबर्स और फिगर्स देख रहे हैं न्यूज में, ये सिर्फ नंबर्स और फिगर्स नहीं, एक्चुअल लोग हैं जिनके रियलिटीज हैं। So that makes it your problem. Then you're forced to make it your problem, and it is everyone's problem. So I also want to ask both of you, अगर आप दोनों एक करके अपने इसके ऊपर मुझे comments दे दें कि जो youth है, they're readily consuming social media. How can we train the youth कि वो critically consume करें जो भी material वो consume कर रहे हैं, ताकि they're making sure कि जो वो सिर्फ accurate information consume कर रहे हैं, and they're making sure that even if it's not accurate, whatever narrative they're seeing, they're actually at least thinking about it, कि is this true or not? I think when a question is asked to two people तो वो दोनों दिखते हैं can कि really मेरी तरफ आएगा पहले इसकी तरफ आएगा। so I think एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं है हमारे यूथ के पास, हमें एक होलिस्टिकली सिस्टम के तौर पे चीज़ें देखनी चाहिए। गेम्स के अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कम है, एंटरटेनमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कम है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान में डिग्रीज नहीं हो रही। बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनके माँ बाप ने उनको यूनिवर्सिटी भेज दिया और उनको कहा है कि आप ये पढ़ें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब कोई भी बंदा या बंदी या एनी अदर जेंडर वो काम कर रहे हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करेगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें सोसाइटी में एक माइंडफुलनेस बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए एक्सट्रीमिज़म में या इस किस्म के चैलेंजेस में हम साइकोलॉजी का या बड़ा अर्ली कहते हैं कि अर्ली स्टेज पे अगर बच्चों को एम्पैथी का, सेंसिटिविटी का ये पता चल जाए कि ये अप्रोच बिल्कुल 0 और 1 नहीं है, रेडिकल नॉन रेडिकल नहीं होना, हमने कोई प्लूरलिस्टिक अप्रोच के थ्रू बात करनी है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। सो आई थिंक एक तो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको इन चीज़ों के बारे में ओरिएंट करने की ज़रूरत है, और ओरिएंट करने के लिए बहुत सारे काम हमारे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे कोई साइको सोशल सपोर्ट या कोई इस तरह की चीज़ होगी जिसमें बच्चों को पता चल जाए। तो हमारे ही प्रोजेक्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन हो रही है जिसमें खातून को, उस प्रोजेक्ट में ख़वातीन को बनाया गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग एन आई ऑन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। एंड आई लव दैट प्रोजेक्ट इन अ वे कि एक औरत जो होती है, अल्लाह ताला ने वुमेन हैव गिवन मच मोर इमोशनल इंटेलिजेंस देन मैन, उसको बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि मेरा भाई पहले ऐसे था, अब वो इस तरह से बात कर रहा है। एक बीवी को एग्जैक्टली सो बीवी को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर पहले ऐसे था, और माँ से तो खैर बड़ी कुछ चीज़ है ही नहीं, माँ को तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि बच्चा तो मैंने 20 साल में पाला था, ये कुछ कर रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू सेंसिटाइज यंग जनरेशन एंड वी नीड टू ऑल्सो sensitize the caregivers, and mothers in our society have a huge role of caregivers। तो ख़वातीन को, टीचर्स को, वो सारे लोग जो कि हमारे माशरे में तालीम व तरबियत के ज़िम्मेदार हैं, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है। और हमने जो हमने डॉक्टर फारा के साथ पॉडकास्ट किया था, उसका पूरा हमारा मेन मैसेज ये था कि for someone who has such an important and central role, उनको बहुत कम स्पेस दी जा रही है in all of the discussions that we're having. So this is a very important point that you've raised. Please, we would love to hear from you too. Our podcast host is a female, and obviously we're giving so much space, and I think this will start the process. I think like on my end, like अगर मैं अपनी थोड़ा सा डोमेन का देखूं, I think जो
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें, वेदर यू आर अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेदर यू आर एन इन्फ्लुएंसर, लाइक आप कोई भी हैं और आप इंटरनेट के ऊपर कंटेंट अगर बना रहे हैं तो उसके लिए लाइक, बिकॉज देयर आर नो कोई लॉ तो लिखा नहीं हुआ, कहीं पढ़ाई भी नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आई थिंक वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, आई फील लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप जब भी कुछ बनाए तो थिंक अबाउट कि यार ये अगले 50 साल 100 साल ये चीज़ इधर रहनी है, विच इज़ लाइक, फिर आप चीज़ें बना रहे होंगे ना तो आप वैसे ही थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर सही कि अच्छा यार हाँ मतलब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, आगे जाके सोसाइटी के ऊपर इसका क्या फ़र्क होगा, सो बिट ऑफ अ कॉन्शियस कंटेंट क्रिएशन आप इसको करो. Also, अगर हम like content creators के perspective, like they have to be responsible, but I would also want to hear कि जो like consumers हैं of that content, उनके ऊपर क्या responsibility है? आई थिंक एक और चीज़ इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द डिजिटल लिटरेसी पार्ट, के और उसमें स्कूल्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आज का जो भी बच्चा है वो जैसे, अब हमारे ज़माने में हम जब थोड़ा सा घरों से बाहर निकले हैं तो आई थिंक हम प्रॉबली प्ले ग्राउंड्स में गए हैं, हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया है, अब आजकल का बच्चा जो है वो सीधा टिकटॉक के ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक वो जो डिजिटल लिटरेसी वाला पार्ट है कि उनको अभी से उनके जहनों में ये बात डलवाना और उनको अश्योर करवाना कि यार ये जो आप कंटेंट देख रहे हो इसको थोड़ा सा बस कॉन्शियस तरीके के साथ देखें, बिकॉज आप रोक नहीं सकते. अगर नॉर्मली तो भी होता है ना, अच्छा ये ना देखो, ये ब्लॉक कर दो, तो फोन ले लो, तो ये ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है. So you're the social media expert here. Please correct me if I'm wrong. But in my opinion, जो मैंने ज़्यादा देखा है ना कि आजकल rage bait एक बहुत एक अच्छा एक तरीका है, efficient तरीका है आजकल कि आप जल्दी से views ले लो. And I think as consumers, we should also be aware of these things that people are doing to get our attention. So they will push a very extreme narrative जो सबको पता है कि ये गलत है, पर उसके ऊपर every time you comment कि oh this is wrong, या every time you even like it, or people like to go through the things that like you said psychology के negative है तो आप उसके ऊपर जाते हो. What I do is I make a conscious effort कि मैं interact ही ना करूँ उस contact के साथ, because अगर मैं critically सोच रही हूँ कि ये गलत बात है, हो सकता है मेरी interaction से algorithm is pushing that narrative, और वो किसी और वो ज़्यादा impressionable youth के पास भी जा रहा है, like people younger than us are on social media and they might not know the difference between sensationalism or accurate news, or sometimes I don't know the difference. So I do think कि like please correct me if I'm wrong कि ये भी एक बहुत important tool है जो आजकल तो while we're on the topic of rage bait and all of these other strategies that other people are using to push these narratives, for someone who does like you're reporting on accurate storytelling, you're researching, all of your content is informative, so how do you navigate के you're fighting the algorithm with all of these people, right? So what are your main primary challenges in doing so? सबसे बड़ा तो ये कि आप इम्पोर्टेंट आपने कंटेंट भी बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है और वो लोग भी देखें. सो वो जो 3 लाइक आर्क उसको आप कह लो, वरना आप रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाते रहो, अगर वो कोई देख ही नहीं रहा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. और फिर ये भी नहीं है कि अच्छा यार अब हमें ये बनाना ही नहीं है, अब हम बस वायरल कंटेंट बनाएं. अब ज़ाहिर है हम लोगों ने भी प्रोड्यूस ओवर मेरे ख्याल से व्हाट लाइक मोर देन 8,000 वीडियोज़, तो अब लाइक वी नो कि अच्छा यार ये जो कंटेंट है ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये टॉपिक्स निकलते हैं. अब लेकिन वो ये कि जो वायरल चीज़ हो रही है अगर हम सिर्फ वही करने लग जाएं तो फिर वो जो इथॉस है वो ज़ाहिर है वो हो जाएगा. आई थिंक व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इंटरेस्टिंग भी रहे, लोगों को उससे आप एजुकेट भी कर सकें और पीपल कैन मेक सॉर्ट ऑफ better life choices after viewing the content. That is like sort of mantra of what we try to do. No. So अभी तक तो we have discussed कि किस तरह there's public distrust, we cannot trust everything that we see on social media, but at the same time इससे ज़्यादा powerful tool हमारे पास है नहीं जिससे हम कोई भी चाहे वो positive हो negative हो बात कर सकें या लोगों mass audience तक पहुंच सके. तो ऐसे कौन सी strategies हैं जो हम use कर सकते हैं? Firstly we'll talk about communication and like media campaigns, and then we'll talk about your campaign कि ऐसी कौन सी strategies हैं जो आप लोग अपने day to day work life में employ कर रहे हैं जिससे आप make sure कर रहे हैं कि essentially we can build more trust in the media and we can make sure that people still use that as the primary source of information.
आई थिंक एक तो जो डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन है वो ये कि एनीथिंग दैट यू कैन वॉच ऑन डिवाइसेस, और ये बड़ा ट्रांजैक्शनल हो गया. यू कांट एक्चुअली डिफरेंशिएट कि जी ये टीवी का मीडियम है या ये रेडियो का मीडियम है या ये सोशल मीडिया का मीडियम है, बिकॉज द बाउंड्रीज आर रियली ब्लरिंग आउट. You can see the videos in Facebook. You can watch the Facebook videos in your laptops. You can watch. So एक बहुत ही एक ये merge हो गया. और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है. आई थिंक कुछ कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. कुछ क्योंकि एक मुकम्मल माशरे में हर एक की छोटी मोटी जिम्मेदारी है. हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सारी की सारी ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है. सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर द पॉजिटिव नैरेटिव. आई थिंक हर एक को थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा. हम जैसे अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट, द पेरेंट्स हैव टू प्ले दिस रोल. अच्छा, एक और मज़ेदार बात है कि कोई भी जब चीज़ किसी ड्रामे में लत से हिट हो जाती है तो आपको फिर वो नज़र आनी शुरू हो जाती है इन ऑल द digital channels. Or I can't help recalling a very viral clip of Bilal Bhutto, where he misspelled a sentence about if you take if you give them an inch, they will take an arm, and you know the way he explained it, and in a political speech, he said, "अब जो memes बनेंगे इसके ऊपर," and that got viral itself. So what I'm trying to say is कि ये जो digital media है ये हर जगह पे हर स्पेस पे हमें पास नेविगेट कर चले. पॉलिटिशियंस हैं, चाहे एक्टिविस्ट हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे कुछ है. तो बड़ी ज़रूरी है कि हम इन सारी स्पेसिस को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करें और उनको यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए. आई थिंक वैसे तो आपने कवर सारा कर ही लिया. आई थिंक बट व्हाट जैसे नमान सेड के आई थिंक जो स्टोरी टेलिंग है उसको आई थिंक टू लर्न हाउ टू craft, I think, better stories, understanding of the digital audiences, understanding of the new technologies कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने रिसेंटली 1-2 एक्सपेरिमेंट्स की और अब हम रेगुलर शुरू कर रहे हैं कि हम लोग अब कुछ आप कह लो कि वॉइस ओवर्स या जो मोनोलॉग्स हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब बहुत सी की आपको इंटरनेट से फुटेज नहीं मिलती, रिलेटेबल फुटेज. अब वो हम मिड जर्नी के थ्रू, AI के थ्रू उसको बना रहे हैं. सो लेट्स से कि अगर एक बंदा किसी इंटरव्यू में बात कर रहा है कि जी मैं एक सड़क से गुजरा था और वहाँ इतने लोग थे, अब उसकी एक्चुअल फुटेज इंटरनेट से अब ना हम शूट कर सकते हैं ना, अब उसको हम मिड जर्नी से AI के थ्रू बना के अब वो जब आप इंसर्ट करें, वेदर इट्स एन इमेज, वेदर इट्स अ वीडियो, तो वो रिलेट थोड़ा सा चीज़ और हो जाएगी लोग के साथ. सो आई थिंक लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक क्या मार्केट में आ रहा है उससे आप अपना क्राफ्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं. और एक और चीज़ स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि आप स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा कि बाहर की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लोग किस तरह की कैंपेन्स कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं. क्योंकि जब आप 100 चीज़ें देखेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा. लाइक इवन लाइक गो टू द यूरोपियन साइट, अच्छा वहाँ जनरल कंटेंट किस तरह का बनता है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. जब आप मुझे देखते रहेंगे या आप किसी और को देखते रहेंगे तो वो तो एक सर्टेन बस एक ही चीज़ है which you will be just working on. तो I think like थोड़ा सा अपना horizon broad करना, नई टेक्नोलॉजीज को वो करना और काम को कोशिश, अगेन वही वाली बात की, जितना ज़्यादा ह्यूमनाइज पूरी चीज़ हो सके. These are really good examples of how you can use content to actually low consume karna bhi chahne, because if we're saying nice things but we're saying it in a way jo boring hai, monotonous hai, makes sense. People don't want to watch that in their spare time when they're scrolling on social media. So like you mentioned the drama industry, जिसमें इतनी अच्छी examples हैं जिन्होंने ये message put किया है और they have made it seem less intimidating, and they've while maintaining the sensitivity of the issue उन्होंने उसको एक तरीके से entertainment के तौर पे present किया. And like you're doing, you started the revolution with the podcast, and now you're saying कि वो images जब तक move नहीं होती रहेंगे, obviously अब तुम्हारे इतना attention span ही नहीं है कि हम एक पूरी चीज देख सकें बगैर images के. So these are really good examples. Before we end the podcast, if there are any last words that we would want our listeners, who are, most of them are young people, so if there's anything, while it's whether it's social media पे responsibly consume करना और post करना, या फिर it's digital campaigns, any last words for our audiences? I think from my side, probably like I think do whatever you are doing, but just do it a bit in a conscious way. Whether you're producing a content or whether you are consuming the content, थोड़ा सा उसको I think ethically थोड़ा सा conscious होके कि यार मतलब
5 सेकंड बंदा जरा बस सोच ले यार ये जो मैं बना रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ इसके क्या इफेक्ट है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, इवन वो नेगेटिव भी है तो स्टिल डू दैट, वो जरा आप रोकोगे नहीं बट एटलीस्ट आपका वही वाली चीज सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं आई थिंक बैठ जाएगी. दैट्स आई फील लाइक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. I think I'll just try to summarize. You don't believe everything you see because there's so much you see and you don't believe in it. So, and as you talk about algorithms, algorithm is another scary thing because algorithm what does is that if I've been talking about certain thing on a phone, मुझे वही दिखाना शुरू कर देगा. If 5 people of my friends are talking about the same thing, वही मुझे दिखाना. So आप alternate perspectives के ऊपर भी जाएं. अगर आपको कोई वीडियो या कोई पिक्चर जो आपको लग रहा है कि ये मैसेज है, आप थोड़ा सा as you already said, थोड़ा उसका काउंटर रिसर्च करने की कोशिश करिए तो तभी आप रियलिटी के ऊपर बिलीव कर सकेंगे. So just don't believe everything you see online. You've put it and मैं इससे ज़्यादा बेहतर समराइज कर नहीं सकती थी for the end of this podcast. Exactly. हमारे पूरे पॉडकास्ट का जो मैसेज है वो बेसिकली है कि don't believe everything you say, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या you're just scrolling on your phone, you still have the responsibility because these issues are real issues. They exist out of our phones. They're lives of people who are impacted, who are the victims of these, who these people have been working with, and these are real stories and they matter. So thank you so much for joining us for this podcast, and hopefully we have created a small dent, and every action matters, as we say on Fark Padta. Thank you so much for watching, and if you learned something or if this was valuable to you, please do share in your circles. Thank you so much.